People either inspire you or they drain you. Choose wisely. Peace cannot be attained through violence. It can be only achieved through understanding. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I'm Alia Zan. Welcome back to your favorite show, Jazz Junior. फ्रेंड्स, आ गए हम आपसे मिलने और हर वीक की तरह देंगे आपको खूब सारी इंफॉर्मेशन और कुछ टिप्स हेल्थ से रिलेटेड और सुनेंगे पीकू की मजेदार कहानियाँ। और आज बात करेंगे हम वायलेंट बिहेवियर के बारे में। जानेंगे कि बच्चे फिजिकल एग्रेशन या वर्बल एग्रेशन आखिर क्यों करते हैं। आलिया, क्या तुम वायलेंट बिहेवियर के बारे में जानती हो? यस दी, थोड़ा सा जानती हूँ। जैसे कि violent behavior in children can have several effects like property damage, aggressive play और दी कुछ बच्चे तो अपने आप को भी चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दी, मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। हाँ आलिया, मुझे भी ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। पता नहीं उनका बिहेवियर कब चेंज हो जाए और कब वो दूसरों को धमकियाँ देने लगे या उनका अपमान करने लगे। यस दी, ट्रूली सैड। दी, हमें अपना एरोबिक सेगमेंट भी तो स्टार्ट करना है। अरे आलिया, तुमसे बात करते करते हम अपने एरोबिक सेगमेंट के बारे में तो भूल ही गए। तो चलिए फिटनेस वर्ल्ड में। Exercise is very important for our daily routine for everyone. Aerobics is like a healthy dance. Elevating mood, reducing stress, grip. तो चलते अब अपने फिटनेस वर्ल्ड में। बुलाते हैं श्वेता दी, आफरीन और अन्विता को। Let's welcome Shweta दी and two junior friends. Hello everyone. Do you know? It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop. So keep going. With this josh, let's begin the session. Today we'll do merengue march with hands for our warm up. और आज हमारा focus रहेगा upper body, mainly shoulder and today is knee bend with arm swing. This is very good exercise to strengthen your triceps. Fourth exercise which we will do is full jumping jacks with arm going up and down. This helps in building up your stamina and toning your arm muscles.
Cool down. As I always say, please take care of your breathing while doing your workout. I hope you all are doing these workouts in sets to get the best results. Thank you for watching us. Thank you for staying with us. See you next week. Till then, be active, be awesome. थैंक यू सो मच श्वेता दी, आफरीन और अन्विता, आपने हमें इतनी अच्छी एक्सरसाइजेस सिखाई. फ्रेंड्स, as you know, exercise helps burn calories and maintain a healthy weight. Exercise can lower the risk of conditions like heart disease, diabetes, and cancer. Very right, Alia. So thank you so much, Shweta di, Afreen and Anvita. Thank you. आलिया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, आज हम वायलेंट बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं और निकालेंगे उसके सॉल्यूशन. जानेंगे कि बच्चे ऐसी एक्टिविटी या जानबूझकर अपने साथियों से अलग सा व्यवहार क्यों करने लगते हैं, जिससे वो भावनात्मक पीड़ा और हानि का कारण बनते हैं, और साथ ही शारीरिक हिंसा का भी, जैसे लात, थप्पड़, हिंसा, पेंसिल चुबाना. तो आज इसी टॉपिक पे बात करने हम अपने शो में बुला रहे हैं मिस्टर संजय कुमार तिवारी. He is the Director, Alliance and Administration, Brain Behavior Research Foundation of India. Let's welcome Sir to our show. Welcome to our show, sir. Thank you. Thank you. Welcome, sir. Please have a seat, sir. Thank you so much. Let's also welcome a little junior, Jabin James. He's a guitarist. At a very young age, he is doing admirable work. He performs in churches and masses and worships God such religiously. Let's welcome Jabin to our show. Welcome to our show, Jabin. Please have a Welcome. seat. तो अपने शो को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो. तो फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली से स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. पर उससे पहले आलिया, आप अपना क्वेश्चन पूछें. Yes, दी. Sir, I have a question for you. Violence behavior के कुछ क्या सामान्य कारण हैं? जो हिंसात्मक व्यवहार होता है उसके बहुत सारे सामान्य कारण होते हैं, और किसी भी जो हिंसात्मक व्यवहार होता है उसके पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है. तो अगर हम जब कारणों की बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्रमुख कारण, जैसे कि बच्चों में लोगों को आकर्षित करने की बहुत इच्छा होती है,
या स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण साबित करने के लिए वो कुछ न कुछ करते हैं। और जब उनको ये पता चलता है कि हिंसा करने से मुझे आकर्षण ज़्यादा मिलेगा, तो ये उनके व्यवहार में परिलक्षित हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में बहुत चुनौती महसूस करते हैं, तो वो भी हिंसा के तौर पे निकल के आता है। इसी तरह से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे अवसाद होते हैं, तनाव होते हैं, ये भी बच्चों के हिंसात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा बच्चे जो सामाजिक प्रभाव होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो परिवार में होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं, और वो उस सारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। तो कई बार वो देखते हैं कि जिस परिवार में जो हिंसा को प्रमुखता दी जाती है, तो उसका अनुकरण करने लगते हैं। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि वो जो लर्निंग होती है, जो सीखने की क्षमता होती है, जब वो सीखते हैं तो गलतियां करते हैं, तो कई बार उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाता है, कम होता है, तो ये भी एक हिंसा का एक कारण हो सकता है। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे कई बार अनैतिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। Thank you, sir, for your answer. सर, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है। सर, आर देयर एनी अर्ली साइंस दैट अ चाइल्ड मे एग्जिबिट वायलेंट बिहेवियर इन द फ्यूचर? आमतौर पे ऐसे बहुत सारे संकेत परिलक्षित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि बच्चा वायलेंट बिहेवियर कर सकता है। और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द केयर गिवर, टीचर, दे शुड हैव अवेयर अबाउट दैट कि दिस साइन, सो दैट अगर वो एक बार उसको पहचान जाते हैं तो वो जो इमीडिएट इंटरवेंशन है दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइन। और दूसरा एक चीज़ और है कि जो ये साइन होते हैं, जो अर्ली साइन होते हैं, वो कई तरह के होते हैं। जैसे कि बच्चा लगातार एग्रेसिव बिहेवियर प्रदर्शित करता है, दूसरा वो फ्रस्ट्रेशन में है, तीसरा वो आइसोलेट हो जाता है। कई बार क्या होता है, बच्चा अपने परिवार, अपने दोस्त से आइसोलेट हो जाता है, अलग होने लगता है, अलग बिहेवियर करता है। कई बार वो क्या होता है कि बुलिंग बिहेवियर करता है स्कूलों में, कि बुलिंग करता है, सभी बच्चों को करता है। कई बार बहुत ही खतरनाक, मतलब सभी तोड़ना फाड़ना, इस तरह के बिहेवियर वो प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम ऐसे, जो हमारे केयर टीचर हैं, अगर ऐसे व्यवहारों को आइडेंटिफाई करें तो तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, तुरंत मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लेने की ज़रूरत है, बच्चों को वहाँ रेफर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर सर। तो फ्रेंड्स, आप हमारे एक्सपर्ट से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So, can we have the first question, please? Hello everyone, my name is Sarthak Joshi and my question is, how genetic and environmental factors are influential in a child's propensity for violent behavior? बहुत सारे जो रिसर्च है वो शो करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल और जो जेनेटिक फैक्टर हैं वो बच्चों के हिंसात्मक व्यवहार को प्रेरित करते हैं। इस तरह के, लेकिन अभी भी जो जेनेटिक फैक्टर है उसको लेकर के अभी भी बहुत कुछ रिसर्च होना बाकी है। तो ये थोड़ा जल्दी होगा कि हाँ, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर हैं डेफिनेटली वो अफेक्ट करते हैं बच्चे के बिहेवियर को, लेकिन अभी जेनेटिक फैक्टर के बारे में काफ़ी कुछ अभी रिसर्च करना बाकी है। Absolutely, sir. Friends, can I have the next question, please? Greetings to everyone. I am Maithili Thakur and my question is, does bullying in school also give a rise to violent behavior? अगर हम देखें कि जो बच्चे जो बुलिंग बिहेवियर से एक्सपोज होते हैं, उनमें दोनों तरह के बच्चे होते हैं। एक तो जो विक्टिम होते हैं, जिनके साथ जिनका बुलिंग होता है, और दूसरे वे बच्चे जो कि दुर्व्यवहार करते हैं। स्कूल में बुलिंग अगर होती है तो उसको तुरंत और स्थायी समाधान करने की तुरंत ज़रूरत है। चाहे वो जो बच्चा जो बुलिंग का शिकार है या जो बच्चा बुलिंग कर रहा है, दोनों के व्यवहार को सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए स्कूल को कई तरह के प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है, जैसे कि एंटी बुलिंग वर्कशॉप किया जा सकता है। साथ ही साथ जो बच्चों के अंदर संवेदनशीलता है और चीज़ें हैं, उसको भी बहुत प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इन सब करके एक बहुत ही अच्छा वातावरण क्रिएट हो सकता है, जिससे कि जो बुलिंग जो व्यवहार है, जो बच्चों के बीच में एक सहजता उत्पन्न हो और इस व्यवहार को कम किया जा सके। So, can we have the next question, please? I am Priya Yadav and my question is, how can educators identify and address potential signs of violent behavior in the classroom? Our teacher play crucial role to identifying and addressing violence behavior in classroom. They will create a supportive and healthy environment in the classroom. They can continuous observing
the children behavior. They can create the open communication environment so that कोई भी बच्चा संवाद करने के लिए फ्री हो सके. इसके अलावा बच्चे और स्टूडेंट्स के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि जब एक बार बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है तो बच्चा अपनी जो भावनाएं हैं जो उसके अंदर चल रही है वो टीचर के समक्ष व्यक्त कर सकता है. अगर टीचर को लगता है कोई ऐसा इशू आ गया है, अगर उसको लगता है कि किसी बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो तुरंत उसको इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है. तुरंत बच्चे के साथ संवाद स्थापित करना है और जो भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है उनको बताना है. साथ ही साथ जो अपने स्कूल के जो सीनियर अथॉरिटी है उनको भी सूचित करना है और माँ बाप को भी उसमें सम्मिलित करना है. इसके अलावा एंटी बुलिंग प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एंटी बुलिंग प्रोग्राम हमें हर स्कूल में इम्प्लीमेंट करना है जिससे बच्चों के अंदर दूसरे बच्चों के प्रति जो स्नेह है, संवेदनशीलता है, वो भी उसमें उत्पन्न होती है. तो ये कुछ तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके स्कूल में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है जिससे बच्चों का जो रिस्क है उसको कम से कम किया जा सकता है. Thank you, sir. फ्रेंड्स, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नमस्कार, मैं समृद्धि जैन आज आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि लड़के और लड़कियों के बीच में हिंसात्मक व्यवहार के प्रकटन में क्या अंतर हो सकते हैं? लड़कियां लड़कियों के बीच में जो हिंसात्मक व्यवहार के प्रकटन में कई तरह के अंतर हो सकते हैं और ये जो अंतर होता है ये लिंग के आधार पे नहीं होता है, ये लड़का है या लड़की है, जबकि ये सांस्कृतिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक वजह से ये अंतर आता है. जैसे कि सामाजिक दबाव होता है. सामाजिक दबाव में लड़कों पे एक अलग तरह का दबाव होता है, जैसे कि वो रो नहीं सकते, अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं. तो परिणाम क्या होता है, बच्चे के हिंसात्मक तरीके से अपनी मजबूती को प्रदर्शित करते हैं. राइटली सेड सर, इसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भी कहते हैं. जी, एक और कारण होता है जो सोशलाइजेशन होता है. लड़कियों का जो सोशलाइजेशन होता है अलग तरीके होता है. लड़कियों से हम उम्मीद करते हैं कि वो नियंत्रित तरीके से अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे, जबकि लड़कों से ऐसी कोई बात नहीं है. वो इस वजह से लड़के जो हिंसात्मक व्यवहार है उसकी तरफ उन्मुख होते हैं. तो ये कुछ कारण होते हैं जो चीज़ों को करते हैं. राइट सर, थैंक यू सो मच सर. सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा बिहेवियर एग्रेसिव है तो हम इसे किसी और तरफ ले जाएं? हम अपने हिंसात्मक व्यवहार को डाइवर्ट कर सकते हैं अन्य विधाओं में, जैसे संगीत होता है या हमारा खेल होता है. जैसे खेल है, खेल में क्या होता है कि बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं. जहाँ एक और खेल आपके शारीरिक विकास को मजबूती प्रदान करता है, वैसे ही मानसिक तनाव को कम करता है. इसी तरह से संगीत है. संगीत में भी व्यक्ति अपनी बहुत सारी संवेदनशील भावनाओं को व्यक्त करता है. तो इसी वजह से जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका दे. जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो म्यूजिक बजाते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे तबला होता है या गिटार होता है. राइट सर, हमारे साथ तो एक एग्जाम्पल बैठा ही है, जबिन, जो कि इतना अच्छा गिटारिस्ट है. ओह वाह. तो जबिन, बताइए आपने गिटार बजाना कब शुरू किया था? मैंने गिटार बजाना 6 साल पहले शुरू करा था. वाह जबिन, आप इंस्पायर कैसे हुए थे? मैं यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख के ऐसे म्यूजिकल बैंड में के शोज में जाकर मैं इंस्पायर हुआ और मैं उनसे बजाने लगा. एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो आप गिटार कहाँ प्ले करते हैं? मैं चर्च में बजाता हूँ, घर पे वैसे ही प्ले करता हूँ, स्कूल्स में लाता हूँ. मैं कुछ कंपटीशन टाइप होता है तो मैं प्ले करता हूँ. तो क्या आप हमें कुछ ट्यून सुना सकते हैं? अमेजिंग जबिन. जबिन, मुझे गिव मी सम सनशाइन गाना बहुत पसंद है. क्या आप उसकी ट्यून जानते हो? हाँ, जानता हूँ.
प्लीज बजा के सुनाओ। वाओ जबिन, मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हम अपने वायलेंट बिहेवियर को म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स में कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जबिन से इंस्पायर होना है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर शो। आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच जबिन, आपने इतने अच्छे ट्यून सुनाए, हम तो सुन के बहुत खुश हो गए। थैंक यू, आप हमारे शो में आए और हमें इतना एंटरटेन किया। जबिन, थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अरे आलिया, आज क्या तुम्हें पीकू से स्टोरी नहीं सुननी? यस दी, मैं तो ये भूल ही नहीं सकती। तो चलें पीकू को बुलाएं। यस दी, अब पीकू को बुला ही लेते हैं। अरे आलिया, मुझे आज आप कुछ नाराज लग रही हैं। नहीं पीकू, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? पर ऐसा ही लग रहा है। हाँ पीकू, तुम ठीक कह रही हो, आज आलिया तुमसे कुछ नाराज है। हाँ, पर मैंने कुछ भी नहीं किया जो आलिया मुझसे नाराज हो। आलिया, क्या तुम्हें पता है कि बारिश के पानी को हम बर्बाद होने से कैसे रोक सकते हैं? वो कैसे? अरे पीकू, मुझे पता है, आलिया की फेवरेट स्टोरी सुनाकर, है ना? यू आर राइट। अच्छा, तो ध्यान से सुनो। बारिश के पानी को एक जगह इकट्ठा करने से पानी को बह जाने से रोककर। हाँ, वो तो मुझे पता है। हाँ पीकू, मैंने देखा है। इस तरह पानी को बचाने से हम आने वाले समय के लिए पानी संरक्षित कर सकते हैं। वो कैसे? तो आओ सुनाती हूँ तुम सबको एक कहानी। पानी को बचाने के लिए किस तरह से गांव वालों ने ठानी। आओ बच्चों, सुनाती हूँ तुमको एक कहानी। पानी को बचाना होगा, ये है हमारी जिम्मेदारी। याद रखना, एक एक बूंद है अनमोल, यही है हम सबकी समझदारी। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे बारिश का पानी तो सब बह गया। याद रखना बच्चों, पानी की एक एक बूंद अनमोल है। हम अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण करना होगा। हम सबको एक एक जल सैनिक बनना पड़ेगा। माँ, पता है आज मास्टर जी ने कहा कि हम सबको जल सैनिक बनना है। जल सैनिक किसको कहते हैं? जल सैनिक वो होता है जो पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए खुद भी कोशिश करता है और दूसरों को भी सीख देता है। इस तरह पानी बचाकर ही हम जल संकट से बच सकते हैं। मैं भी पानी बचाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी जल सैनिक बनूंगी। हम सबको पानी बचाना है। बारिश का पानी इकट्ठा करके और उसे हर रोज उपयोग में लाकर हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम अपने कुओं की मरम्मत करके उनका उपयोग भी बढ़ा सकते हैं। पर ये हम कैसे कर पाएंगे? इसकी शुरुआत तो हम अपना समय और मेहनत लगाकर कर सकते हैं। हम सब इकट्ठा होकर करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। वाह, बारिश के पानी को बह जाने नहीं दिया, बचा कर रखा तो कितना फायदा हुआ। साथ ही हाथ मिलाना, मिलके जल बचाना। सब मिल बचाओ वर्षा जल, हमारा भविष्य हो उज्जवल।
देखा पीकू ने कितना इम्पोर्टेंट मैसेज दिया। फ्रेंड्स, हम सबको ये सीख लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच पीकू, हमें हर वीक की तरह इस बार भी इतनी क्यूट स्टोरी सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच पीकू, आपने हमें इतनी प्यारी स्टोरी सुनाई। दी, ले लेते हैं अपना ईमेल। हाँ आलिया, बिल्कुल। तो ये ईमेल आया है मिस्टर नितिन कुमार पंचाल की तरफ से, जो कि क्रिस्टो ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हैं। वो लिखते हैं, Thanks a lot for giving a chance to our school choir group. Thank you DD National for the opportunity. We learned a lot from the channel. We hope you get the fame you deserve. Thank you so much हमें इतना अच्छा ईमेल भेजने के लिए। थैंक यू, आपने हमें इतना प्यारा ईमेल भेजा। तो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम के बस इतना ही। We will meet you on the same day, same time next week only on your favorite show, Jazz Junior. और आप हमें अपने फीडबैक लॉगिन करके सेंड कर सकते हैं ddjazzjunior@gmail.com पर, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिएगा। Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye bye. सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, जय जूनियर।